Assalamu alaikum, and today we are going to be studying animal behavior. This is one of the last topics of CSS syllabusology, but it is very important topic because animal behavior paired with endocrinology इन दोनों में से at least 20 marks का question लाजमी आता है. It's either 10 marks from endocrinology and 10 from animal behavior, या फिर 20 marks का ही endocrinology portion से आ जाता है, या फिर 20 marks का ही animal behavior portion से आ जाता है. So we are going to be solving and preparing for one long question. Let's dive into it. What is animal behavior? Behavior होता क्या है? Remember, behavior की study को हम ethology कहते हैं. ठीक है? Tin Burgeon was the man who has been awarded Nobel Prize for work on animal behavior. और वो इतना simply animal behavior को define करता है. He says total movements made by the intact animal. किसी भी मुकम्मल जानवर की जो तमाम मूवमेंट्स होती हैं ना, they are all referred as animal behavior. Tin Burgeon simply says total movement made by intact animal is called as animal behavior. अब यहाँ पे Wallace की definition is way better and elaborate. He says observable activity of an organism. Remember, behavior वो होता है जो दूसरा बंदा देख सके, उसको observe कर सके. So it is observable activity of organism. Anything an organism does जिसके अंदर कोई भी action या response आता है to stimulation. बाहर कुछ भी हुआ, आपका कोई response आया, that would be called as your behavior. रावन एंड जॉनसन सिंपली डिफाइन करते हैं व्हाट एन एनिमल डज इज कॉल्ड हिज और इट्स बिहेवियर. अब स्टिमुलेशन एक्सटर्नल बहुत सी तरह की होती है, स्टिमुलेशन इवन इंटरनल भी बहुत सी तरह की होती है. हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली तमाम वो तब्दीलियां जिनको हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं, उनको रिस्पॉन्स करते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलेशंस कहलाती हैं. अब ये जो स्टिमुलेशन है उनके रिजल्ट में, स्टिमुलेशन के रिजल्ट में जो है हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है. तो वो जो सारा रिस्पॉन्स होगा, एक्टिविटी होगी, वो क्या कहलाएगी, उसका बिहेवियर कहलाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू टिन अगेन, इसने चार तरह के सवाल किए कि एनिमल के अंदर कम्प्लेक्स बिहेवियर क्यों होता है. नंबर वन, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बिहाइंड द बिहेवियर, कि पूरे एनिमल अगर सर्टन तरीके का बिहेव करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे क्या वजूहात शामिल हैं. उसके अलावा उसने डेवलपमेंटल साइड भी देखने की कोशिश की बिहेवियर की, कि डेवलपमेंट के दौरान किस तरह से एनिमल का बिहेवियर चेंज होता है, या फिर डेवलपमेंट का इंसान के बिहेवियर या एनिमल के बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. Or even the behavior, it changes over time. So how it develops, that too was a question. Behavior की survival value क्या है? How is behavior important in ensuring the survival of a species? And also he studied about evolutionary behavior or phylogenetic behavior. क्या behavior की कुछ traits ऐसी हैं जो कि genes के through जो है over the generation pass down होती हैं. That was all about it. The scientific study of animal behavior, which dates back to hundreds, if not thousands of years, is called as ethology. जब हम behavior को पढ़ते हैं, that is called as ethology. Behavior comes in orderly sequences, recognizable patterns of behavior that can be called as behavioral units. Now, कुछ behavior ऐसा होता है कि उसमें एक pattern है. It's like it's never changing. ऐसे recognizable patterns को हम कहते हैं behavioral units. ये fixed action patterns होते हैं. For example, you slap a baby, you know इसने रोना शुरू कर देना, ये fixed है. The same animal will produce the same pattern of movement again and again. एक ही जानवर है तो वो एक ही तरह से बिहेव करेगा बार बार. डिफरेंट मेंबर्स सेम स्पीशीज के भी कहीं ना कहीं दे एक्ट इन वेरी सेम ways. अब डिफरेंट मेंबर जो सेम स्पीशी के होंगे, जैसे ह्यूमंस हैं, वो चाहे दे आर वन स्पीशी, तो उनका भी कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है वो आपस में क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का भी बिहेवियर कहीं ना कहीं पर सिमिलर होता है. टू मेन अप्रोचेस टू स्टडिंग द टाइप ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर को स्टडी करने के दो तरीके हैं. एक फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, whatever goes inside you, functions and all, and then whole animal behavior, जहाँ पे आप
एनिमल को एज एन इंटैक्ट होल बीइंग कंसिडर करते हैं, दैट इज होल एनिमल बिहेवियर। देयर इज फिजियोलॉजिकल एंड देन देयर इज होल एनिमल बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर क्या है? फिजियोलॉजिकल बिहेवियर इज ऑल अबाउट, ये अप्रोच फोकस करती है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ओके, डिफरेंट ऑर्गन जो आपकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में हम इंटरनल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं बॉडी वर्क कैसे करती है, किस तरह से नर्व्स मसल सेंस ऑर्गन सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। सो जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दैट इज फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। इसका गोल क्या है? ताकि हम मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर को समझ सकें कि बिहेवियर जो है वो किस तरह से काम करता है, हाउ द इनर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड हाउ दैट सेंसेशन जो कि इनर बॉडी में गई है उनको ब्रेन परसीव करता है, और उसकी बेस पे हाउ इट जनरेट्स, हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट, थिंकिंग पैटर्न, एवरीथिंग। तो जब हम इंटरनली एक पूरा मैकेनिज्म पढ़े हैं, दैट इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। अब हम इसमें नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से कोऑर्डिनेटेड है to allow a cricket or a bird to sing। ठीक है, ऑल ऑफ दैट इंटरनल। अब होल एनिमल बिहेवियर में हमारे पास क्या आता है? दिस अप्रोच फोकसेस ऑन इंटैक्ट एनिमल एंड इट्स इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसमें हम इंटैक्ट एनिमल को देखते हैं और फिर हम उसकी इंटरेक्शन देखते हैं विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें हम देखते हैं पूरा जो जानवर है उसका किस तरह से, हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल क्यूज। ठीक है, हम सोशली उसको स्टडी करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हम सिंपली देख रहे हैं उसके बाहर क्या हुआ है और उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया है। तो ये एक्सटर्नल अप्रोच है। अब इसका मकसद क्या है? द गोल क्या है? द गोल इज टू अंडरस्टैंड फंक्शन और कॉज ऑफ अ बिहेवियर। अगर एक एनिमल सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है, क्या उसको सोसाइटी में या उसके सोशल ग्रुपिंग में कुछ फायदा हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, or whatever has caused a particular behavior, all of that is studied in the whole animal perspective. Now we have studied behavior hota kya hai, all what that animal does is called as its behavior, or behavior can be, summarized as all observable action which are, undertaken by organism in response to the external stimulation। ये वॉलिस की definition है। फिर हमने देखा ethology is the study of behavior, एंड देन वी सी कि हम बिहेवियर जब स्टडी करते हैं हम उसकी सर्वाइवल वैल्यू देखते हैं, हम उसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ द बिहेवियर इट इज डेवलप्ड ओवर टाइम। ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज सीन। अब दो पर्सपेक्टिव में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में वी आर सीइंग व्हाट गोज ऑन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, and in whole animal perspective we are seeing what happens or how a behavior um, is caused and what a behavior is aiming at। अगर animal कुछ खास तरीके से behave कर रहा है, what it wants to gain through the thing, that is also the whole animal behavior perspective। अब इसमें आते हैं कि इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से एनिमल ने पर्टिकुलर वे में बिहेव किया। हम अब जानवर के अंदर उसकी फिजियोलॉजी में नहीं जा रहे, हम उसके बाहर इकोलॉजी में चले गए हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम देखेंगे क्रिकेट या बर्ड, लेट्स से वो गाते हैं सुबह के टाइम पे, तो हम कहेंगे वो, एक तो वो गाते क्यों हैं, अगर वो गा रहे हैं तो एक खास वक्त पे क्यों गा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। फिर उनका मकसद क्या है, लाइक आर दे सिंगिंग टू अट्रैक्ट मेट्स और आर दे singing to for territorial defense, whatever the reason is, all of that is seen in this whole animal perspective। Okay, अब हमने ये दो चीजें देख लिया है। नाउ मूविंग ऑन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की बहुत सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वी हैव इननेट बिहेवियर। इननेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो स्पीशी के अंदर पहले से मौजूद होता है, जिसको वो सीखते नहीं हैं। ठीक है, जिसे हम फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं। सिंपली इसमें आप देखें, एग्जाम्पल है सीगल्स की। सीगल्स क्या करते हैं, उनके जैसे ही द न्यू बोर्न्स, वो जैसे ही हैच होते हैं, व्हाट दे डू इज वो अपनी मदर की बिल्स या बीक्स के ऊपर टैप करते हैं विद देयर ओन। ठीक है, वो चूंकि से उसको हल्का सा इस तरह से करते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उनको किसी ने नहीं सिखाया है, लाइक दिस इज द बीक, आपने इसको टैप करना है, तो जो मदर है वो अपनी फूड जो है वो रीगर्जिगेट करेगी और देन आपको फूड मिलेगी। अब दैट टाइम वो जो न्यूली हैच्ड है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर। But what propels, what makes that small little creature tap on the exact thing that is carrying the food?
के अंदर उसने ये चीज सीखी नहीं है, इट डजंट नो, उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, देयर इज नो लर्निंग है, ये इंस्टिंक्टिव है, ये इननेट बिहेवियर है। अब इसमें मेसन वास्प की भी एग्जांपल आती है। इवन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, उनकी लाइफ का मकसद ही ये होता है, दे आर न्यूली बोर्न, उनके पास उनके लार्वा अवेलेबल होते हैं, वो उसको खाते हैं, बड़े होते हैं, नेस्ट बनाना शुरू करते हैं, मेट करते हैं, मेट करके दे ले देयर एग्स, एंड आफ्टर लेइंग एग्स दे हंट, और वो जाके डिफरेंट वास्प लेकर आते हैं, नेस्ट के अंदर जाते हैं, नेस्ट को अंदर से बंद कर देते हैं, फीमेल डाइज, और फिर वो जो न्यूली हैच्ड आएंगे, अगेन वो लार्वा जो है, इनिशियली इट वुड फीड ऑन जो मदर जो है वो छोड़ के गई थी, ऑल द वर्म्स एक्सेट्रा, फिर वो बड़े होंगे एंड इट विल ग्रो आउट, इट विल मेट, इट विल मेक अ नेस्ट एंड अगेन हैच एंड ऑल। नाउ इन सच सिनेरियोज, वास्प हो गया या कोई भी इंसेक्ट हो गया, इट डज नॉट नो व्हाट इट इज सपोज टू डू विद इट्स लाइफ, बट स्टिल पहले अटेम्प्ट में ही इट इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज सपोज टू डू। इट इज लाइक इट इज प्री प्रोग्राम्ड इन अ सर्टेन वे। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज इनइट बिहेवियर। इनइट बिहेवियर के ऊपर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता। Even in case of seagulls, when they did proper research on that, they realized कि जो मदर की बीक होती है, जो बिल होती है, उसके ऊपर ना छोटा सा रेड स्पॉट होता है, and that red spot somehow triggers, it stimulates the little newly born कि वो उसी एग्जैक्ट जगह पे टैप करे, and after that the mother she simply she vomits out her food, जो कि semi crushed food होती है, into the beak of the beak of its offspring. तो अब this whole complicated thing planned है, ये innate behavior में आती है। And here, one of the examples can be the sucking stimulus of a newborn for its mother. It's somehow the baby knows that where it is supposed to get food from. And it is one of the things that has been highlighted in Quran as well. So that says, and that is one of the indicators or manifestations of the wisdom of God. अब ये इनट बिहेवियर जो है वो उन जानवरों में होता है जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उनको वैसे भी जिंदगी में इतना सीखने का मौका नहीं मिलना, छोटा सा लाइफ स्पैन है, दे विल सिंपली इंस्टिंक्टली उनके अंदर प्रोग्राम चीजें हैं, और दे विल जस्ट वो एक कॉपी पेस्ट वाली लाइफ जो है वो जीते रहेंगे, उनके अंदर पेरेंटल केयर भी नहीं होती। देन वी हैव अडेप्टिव behavior. Now, adaptation is all about changing yourself as a result of experience. Whatever आप अपनी लर्निंग, अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंज लाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल व्हाट अडेप्टेशन इज अबाउट। अडेप्टेशंस के अंदर या अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर वी हैव मल्टीपल डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ बिहेवियर। इट इंक्लूड्स habituation, it also includes conditioning, latent learning, insight learning, cognition, and motivation. All of this is in adaptive behavior. अडेप्टेशंस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आता है हमारे पास वो हैबिचुएशन की या सेंसिटाइजेशन की आती है। हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दे आर कम्प्लीटली अपोजिट। नाउ व्हाट इज हैबिचुएशन? हैबिचुएशन ऐसे नाम से क्लियर हो रहा है, इट्स मोर लाइक हैबिट, जैसे आदत होती है। सो हैबिचुएशन इज सिंपली learning where animal after repeated exposure to stimulus stops responding to it. Habituation is all about saving the energy of an organism. फॉर एग्जाम्पल, पहली बार बाहर कुछ आवाज आती है, आप अलर्ट होते हैं, आप जाते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है, मेरी लाइफ डेंजर में तो नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग। Second time you just somehow you will react a little, आपका reaction थोड़ा less intense होगा, and eventually you will get used to the voice. You realize कि over the course of time your body and your nervous system it has realized कि ये चीज होती रहती है, and it is totally non lethal, non fatal, तो इसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बॉडी का एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स, इन ऑर्डर टू सेव इट्स एनर्जी। ना हैबिचुएशन जो है, इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है। अब इवेंचुअली इसकी एग्जांपल क्या है? बर्ड्स लर्न नॉट टू टेक फ्लाइट एट साइट ऑफ एवरी ब्लूइंग लीफ। आहिस्ता आहिस्ता पहले शुरू में बर्ड्स के अंदर खौफ होता है, जरा सी हल्की सी कहीं पे मूवमेंट होती है, दे जस्ट सिंपली जस्ट दे जस्ट फ्लाई अवे, ठीक है। बट फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बर्ड जो है वो हर
पत्ता जो हिल रहा है उसके रिजल्ट में जो है वो उड़ते नहीं है, बिकॉज दे रियलाइज ओके दिस इज नॉर्मल, आई एम सेफ. दैट इज ऑल व्हाट हैबिचुएशन इज ऑल अबाउट. हैबिचुएशन हमारे अंदर होती है. फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन एरिया जो बहुत नॉइजी है. स्टार्टिंग में यू नो व्हाट हैपेंस इज we will not be able to sleep. हमारे nerves वगैरह they will be like overstimulated, but eventually we just you know get used to it. Our nervous system it just stops responding to the whole external thing क्योंकि उसको आदत हो जाती है. अब इसका अपोजिट में है सेंसिटाइजेशन. सेंसिटाइजेशन ये है कि एक चीज के रिपीटेड एक्सपोजर से यू जस्ट गेट सेंसिटिव टुवर्ड्स समथिंग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग desensitized towards something. अब ये सेंसिटाइजेशन अपोजिट है. आपका रिस्पॉन्स पहले कुछ और होगा, बाद में एलिवेट हो जाएगा, देन आगे और भी एलिवेट हो जाएगा. इट्स लाइक you're becoming more attuned. You're becoming more active, and you're responding more to the crime, whatever is happening outside. That is what sensitization is all about. The opposite of habituation. ये habituation का opposite है. The animal becomes more sensitive and responds more readily, especially after receiving an alarming or noxious stimulus. Sensitization, usually the abused, people or traumatized people, they are usually sensitized. That is कि अगर उन्होंने, let's say if somebody had an aggressive parent at home, तो वो noisy और chaotic environment में let's say रहते रहे हैं. अब क्या होगा कि वो कहीं safe environment में भी जाएंगे तो जरा सा शोर होगा, their body they will simply flinch in an instant. तो क्या है, their body it has associated a sound with a particular danger. तो वो sensitize हो जाते हैं. तो ये दोनों तरह की जो है लर्निंग की सिंपलेस्ट टाइप्स हैं, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन. सेंसिटाइजेशन को आप सिंपल फ्रेज में जिस याद रखना है तो वो ये वही है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना. इसमें एप्लेजिया जो कि है हमारे पास वाटर स्लग्स हैं. अ डेंजरस स्टिमुलस, आप उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे ना तो अब वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो जाहिर है सेंसरी न्यूरॉन फिर आगे इंटर न्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन सबके साथ जब कनेक्ट हो जाएगा तो होल थिंग इट जस्ट सेंसिटाइजेस द सिस्टम और वो इसको क्या बना देती है, मोर रिस्पॉन्सिव बना देती है. देन देयर इज learning that is called as conditioning. What is actually conditioning? Conditioning is associative learning. जब दो चीजों को हम इकट्ठा पेयर कर देंगे ना तो हम कहेंगे ये लर्निंग क्या है, कंडीशनिंग. If I talk about again my point of view, I believe learning यहाँ पे सोसाइटी में और इंस्टीट्यूशन में it is best done through conditioning. Imagine it is a particular shape like जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, स्टार होता है, एरो होता है. These are simple random shapes. But we have somehow associated कि वो एक particular फाइव कॉर्नर वाली जो शेप है अगर वो हमें किसी ने नोटबुक पे इस तरह से ड्रॉ करके दे दी है, now we should just start feeling good about ourselves. So somehow, and then all of a sudden what people want is they want stars on their uniforms. Why? Because they have associated this particular shape with a feeling of superiority or a feeling of um, uh, attainment of some goal or something like that, or with success simply. It is a random shape like all other shapes, but still we just take prestige in that. Okay, यहाँ पे दो स्टार हैं, अब तीन हो गए, अब चार हो गए, and all of that. So it is conditioning. अब ये एसोसिएटिव लर्निंग है कि अच्छा ये होता है तो फिर ये होता है, एंड देन यू जस्ट योर हार्ट इट जस्ट learns to pair the two things. एसोसिएटिव लर्निंग में हमारे पास जो लर्निंग आती है दो यानी कंडीशनिंग आती है वो दो तरह की है. क्लासिकल है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. What is classical conditioning? Classical conditioning इसमें इवन पावलोव का सबसे इम्पोर्टेंट काम था. It is all about एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसका कोई खास काम ही नहीं है कि वो रिस्पॉन्स इन्वोक कर सके. पर जब हम उसको पेयर कर सकते हैं विद अ स्टिमुलस दैट इज नॉट सो न्यूट्रल तो उसके रिजल्ट में भी रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाता है. इसकी एग्जांपल अगेन वी विल टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव. खाना दिखाएंगे, डॉग सेलिब्रेट करेगा, उसके मुंह में जाहिर है इट इज
इट इज एंटिसिपेटिंग क्या मैं खाना खाने वाला हूँ, तो ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है वो विजुअल स्टिमुलस की बिना पर ही इट जस्ट स्टार्ट्स गिविंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आप खाना देखते हैं, आपका स्टमक में ऑलरेडी जो है कंट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आप खाना देखते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि आपकी body it is viewing, it has realized that you are about to eat food, so it has already started to produce the saliva now. अब again ये जो है ये this is not a neutral stimulus, it is a relevant stimulus. Food and salivation ये relevant है. But for example, before giving food, if uh, Pavlov decides to ring a bell, बेल बजाएंगे, खाना देंगे, डॉग जो है वो खाने को देखेगा, सैलिवेट करे, सिंपल एज दैट। बट इवेंचुअली अगर इस चीज को इतना रिपीट करेंगे, देयर विल कम अ टाइम जब बेल बजाएंगे चाहे खाना नहीं देंगे, क्योंकि डॉग ने एसोसिएट कर दिया है कि जब भी बेल बजती है खाना आता है, तो वो ऑलरेडी क्या करेगा, सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा, हालांकि उसको खाना नहीं दिखा, बट ऑलरेडी इन हिज हेड सिंस ही हैज पेयर्ड द फूड विद द बेल, नाउ रिस्पॉन्स उसने वैसे ही देना शुरू कर दिया है। जैसा वो फूड के लिए रिस्पॉन्स दे रहा था, वैसे ही रिस्पॉन्स अब वो बेल के लिए दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग। An animal learns to respond to a new stimulus, जिसको हम conditioned stimulus कहते हैं, in anticipation of biological stimulus. This is classical conditioning. Then we have operant conditioning. Operant conditioning is goal directed behavior. अब goal directed behavior क्या है, इसमें आपको आपने कुछ किया, आपको उसके रिजल्ट में you got something, and then you realize, okay, I feel good now, then you just do it again, anticipating कि पिछली बार ये करने पे ये हुआ था, तो दोबारा करेंगे तो दोबारा ये चीज हमारा फायदा होगा। इट्स मोर लाइक ओपरेंट कंडीशनिंग को आप इस तरह से समझें, जैसे पीपल दे स्टार्ट फॉलोइंग फॉर वैलिडेशन और फॉर प्रेज, वो स्पेशली द हाई परफॉर्मर्स वन, व्हाट दे डू, सिंपली दे डू देयर बेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि अभी तारीफ होगी, अब वो एक तारीफ हो गई है, नाउ दे विल डू इट अगेन। व्हाई? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दैट डोपामिन हिट जो उनको तारीफ पर मिलता है, दैट वैलिडेशन, दैट सेल्फ एस्टीम बूस्ट दैट दे गेट व्हेन दे आर अप्रिशिएटेड। दैट इज व्हाट ऑल ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, अगेन वी ऑल्सो हैव बीन कंडीशन इन ऑपरेंट मैनर। Now, goal directed behavior में क्या है? When animal learns to perform a response as a result of what happens after the response, the behavior is reinforced or punished by its consequences. आप कुछ भी करने से पहले रुक जाते हैं because you realize, okay, last time किया था तो फिर मार पड़ गई थी, तो अब दोबारा भी पड़ ही जाएगी. So that is the operant conditioning. बट अगर आप कुछ करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम किया था तो फिर कुछ फायदा हुआ था, तो आप दोबारा फायदा करना चाह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो operant conditioning. Life also teaches us through all these conditioning types as well, including the operant ones. Now, experiment. यहाँ पे बी एफ स्किनर का काम है। स्किनर साहब ने रैट्स के साथ काम किया, और इसने क्या किया, इसने बिहेवियर को मॉडिफाई किया, यानी एक बिहेवियर जो है वो बढ़ाया बाय गिविंग द रिवॉर्ड। इसमें अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है, आपने अच्छा काम किया, आपको जो है हम चॉकलेट देते हैं, नाउ यू आर लाइक हैप्पी। रैट्स के साथ इसने क्या काम किया था, रैट्स जो है वो लिवर प्रेस करते थे, उनको खाना मिलता था। अब उन्हें जब पता लग गया लिवर प्रेस करने पे खाना मिलता है, अब आहिस्ता 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 उनकी लिवर प्रेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? Action leads to removal of an undesirable stimulus. नेगेटिव reinforcement is all about कि पहले ही हम आपको सबको तकलीफ में रखें, अगर आप कुछ करेंगे something that I want you to do, then I will remove the undesirable stimulus. अब negative reinforcement में, let's say people while they are training different animals, वो क्या करते हैं, वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रेइंफोर्समेंट को पेयर करते हैं। दे कीप द एनिमल हंग्री, उसको भूखा रखा हुआ है, ठीक है, अनडिजायरेबल सिचुएशन है ना। आप जैसे ही वो वाला जेस्चर या वो करता परफॉर्म करेगा जो हम उससे चाहते हैं,
उसके बाद हम वो अनडिजायरेबल स्टिमुलस रिमूव कर देंगे, हम उसको खाना दे रहे हैं इन अ वे। अब हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी हमने साथ में करा दिया। तो दिस इज हाउ द एनिमल्स दे आर ट्रेन्ड। देन देयर इज पनिशमेंट। Punishment is all about action leading to receiving an undesirable stimulus. आपने कुछ किया है, अब उसके रिजल्ट में हम undesirable stimulus देंगे। You did something, we did not like it, this is your punishment, whatever corporal punishment, or even emotional punishment like insulting someone or simply giving them a silent treatment, all of that। आपने कुछ किया, उसके रिजल्ट में हम आपको अनडिजायरेबल सी चीज जो है स्टिमुलस देंगे, दैट इज what punishment is about। Then there is omission training। अब omission training में क्या है? Action prevents the delivery of a प्लेजेंट स्टिमुलस। कि आपने कुछ किया है, उसके बाद अब आपको जो है ना कुछ अच्छा जो मिलना था वो अब आपको नहीं मिलेगा। जैसे टीचर्स व्हाट दे डू इज ओके एवरीवन विल गेट अ स्टार एक्सेप्ट अगर कोई बच्चा लेट्स से छुट्टी करता है तो आपको स्टार नहीं मिलेगा। अब स्टार इज अ प्लेजेंट स्टिमुलस, लेकिन आपने छुट्टी की है, यू डिड एन एक्शन जो कि was unwanted, अब आपको स्टार नहीं मिलेगा। तो ये like it has prevented you from getting what you wanted। That is omission training। This is what some parents they do। What they do is okay, अगर आपने कुछ बाहर बहुत देर तक खेलने गए and you did not come on time, okay, no dinner for you। That is what omission training is। कि अब आपका कुछ है, आपकी फेवरेट फूड नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया। अब ये सारा का सारा इट इज ऑल अबाउट ओपेरेंट। ओपेरेंट और क्लासिकल में फर्क ये है, ओपेरेंट जो है उसमें जो हमारे पास स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है उनके दरमियान एक डायरेक्ट ताल्लुक है। क्लासिकल कंडीशन में हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, हालांकि रिस्पॉन्स का कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारे स्टिमुलस से बनता नहीं था, लेकिन हमने स्टिमुलस को पेयर इस तरह से कर दिया था कि इन इट्स माइंड वो रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। सो व्हाइल यू आर स्टडीइंग ऑल ऑफ दिस, try to understand, are you being conditioned by something or not, because you do not want to be controlled। Anyway, moving on, this was all about एसोसिएटिव लर्निंग। अब हम देखेंगे मल्टीपल रिस्पॉन्स लर्निंग, या जिसको हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। व्हाट इज लेटेंट लर्निंग? फॉर लेटेंट लर्निंग लेट्स कम हियर। लेटेंट लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? लर्निंग दैट occurs in the absence of immediate reward but is not immediately evident in behavior until a reward is introduced। लेटेंट लर्निंग सिंपली ये है, रिवॉर्ड के बगैर भी वी लर्न थिंग्स। आप कहीं पे भी किसी रास्ते में जाते हैं ना, आप गुजर के गए हैं, नेक्स्ट टाइम आपका फ्रेंड कहता है यार वहां जाना है वगैरह, एंड ऑल ऑफ सडन यू जस्ट सिंपली रियलाइज कि आपको सारा रास्ता याद हो गया। हालांकि आप जब गए थे यू वर नॉट ऑब्जर्विंग वेरी एवरी सिंगल थिंग, but it's like whenever you're going through something, your mind, your senses, वो पैसिवली भी ना इंफॉर्मेशन आपके अंदर आ रही होती है, इट इज बीइंग एब्जॉर्ब। दैट इज व्हाट लेटेंट लर्निंग इज ऑल अबाउट। लर्निंग जिसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है बट स्टिल लर्निंग हो रही है, दैट इज लेटेंट लर्निंग। बट ये वाली जो लर्निंग है ना, ये बहुत ऑब्वियस हो जाती है अगर आपने रिवॉर्ड अगर अंदर डाल दिया ना, तो अब तो फिर अगेन दैट वुड गिव यू एन इंसेंटिव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। अब इसमें रैट्स हैं, दे आर रनिंग इन मे स्लोली विदाउट अ रिवॉर्ड। रैट्स मेज से गुजरे होते हैं, उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, स्लोली दे विल मूव थ्रू। बट जैसे ही हम रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करा दें, अब आहिस्ता आहिस्ता विल नोटिस कि जो रैट्स हैं उनका ना सिर्फ रूट ठीक हो गया है, बल्कि अब वो जरा जल्दी 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 ये दे वुड मूव। सो दैट इज व्हाट लेटेंट लर्निंग इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी हैव insight learning and reasoning। Now we are moving from the simplest to a little complex learning and adaptive behaviors। इसमें insight learning और जो reasoning है, the humans they have been blessed with insight learning and reasoning। And for that let's come over here। Insight क्या होती है?
द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म जो है वो लर्निंग की वो इनसाइट लर्निंग है. इट इन्वॉल्व्स द अप्रिसिएशन ऑफ रिलेशनशिप टू सॉल्व प्रॉब्लम टू क्विकली फॉर ट्रायल एंड एरर. एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है जिसमें आप कुछ करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या हुआ है, ओके ये कुछ गलत हो गया, फिर आप कुछ और करते हैं, देन यू सी इसके रिजल्ट में क्या हुआ है, ओके. आप करते 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 इवेंचुअली यू जस्ट यू रियलाइज द करेक्ट वे टू डू अ सर्टेन थिंग. ठीक है, दैट इज ट्रायल एंड एरर. लेकिन इनसाइड लर्निंग में व्हाट हैपेंस इज आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज, अपनी हिस्ट्री, वट एवर यू हैव लर्न, ऑल ऑफ दैट आप उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और आप कोई न्यू प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव उसको सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज इनसाइट लर्निंग. अब वो आपके अंदर की एक हिकमत आपके अंदर पैदा हो चुकी है. ये इनसाइट लर्निंग होती है. व्हेन यू आर एबल टू अप्लाई योर previously known knowledge to a new situation, that is insight learning. Then we have reasoning. What is reasoning? Reasoning is all about, the ability to combine two or more separate experience to form a new effective experience for obtaining a desired outcome. आपने एक या दो तीन आपने कुछ separately चीजें experience की, then you are combining all that you have learned कुछ और नया desired outcome हासिल करने के लिए. तो that is what we call as the reasoning. इसमें हमारे पास जो इनसाइट लर्निंग है इसमें वुल्फगैंग कोहलर का काम है. ही वर्कड ऑन chimpanzees and one of the name of chimpanzee was Sultan. And what he did was he hanged bunch of bananas रूफ में. उसके बाद जो है उसने क्या किया, उसने स्टिक्स जो है वो कुछ रखी हुई थी रूम के अंदर ही, और कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे. बट अब वो बनाना सीलिंग के साथ जो है वो अटैच है. चिंपांजी जो है वो उनको पहुंच नहीं सकता. बट आहिस्ता आहिस्ता व्हाट ही नोटिसेस कि द चिंप इट रियलाइज कि वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के ऊपर तक जा सकता है, बट स्टिल अगर वो फिर अभी भी उसकी दस्तरस में नहीं है. व्हाट ही डिड वाज वो जो स्टिक्स थी उन्होंने देखा कि ये एक साथ जुड़ सकती हैं, और उसने सारी स्टिक्स को साथ में जोड़ा और इवेंचुअली ही वाज एबल टू रीच द बनानास. तब वो जो ये चीज है, he's able to connect the boxes, the sticks, and use all of that in order to get what it wants, desired outcome. That is all what insight learning and reasoning is all about. Then we have cognition and motivation. अब ये cognition और motivation ये भी complex behavior में ही हमारे पास आते हैं. Starting from cognition. What is cognition? Cognition is simply, it is conscious mental process such as solving a problem by using prior experience. Cognition आपकी ब्रेन की complex activity है, मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप एक मसला सॉल्व कर रहे होते हैं. पुराना एक्सपीरियंस भी, नई ऑब्जर्वेशन भी, और अपनी इंसाइट भी, तीनों को मिला के व्हेन यू आर सॉल्विंग समथिंग, दैट इज व्हाट कॉग्निशन इज अबाउट. Measurement often judged by animals' ability to solve problem at which humans are proficient. तो हम कहते हैं एनिमल कॉग्निशन. अगर हम एनिमल में देखें तो वी कंपेयर इट विद ह्यूमंस कि वो कितने ह्यूमन लाइक जो है वो एक्टिविटीज या मसले जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज व्हाट कॉग्निशन इज अबाउट. एंड देन देयर इज अ मोटिवेशन. मोटिवेशन वर्ड मोटिव से आया है, दैट इज मूव. क्या चीज इंसान को हरकत दिलवाती है. तो मोटिवेशन एज an internal factor or a change in animal that explains why it does not respond to the same stimulus in the same way every time it is encountered. अब मोटिवेशन जो है वो बताती है कि इंसान के या एनिमल के अंदर की सिचुएशन, it is somehow causing it to perform a certain way. Same stimulus है बाहर, same environment है, everything is same, even the animal is same, but still it won't give the same response every time. तो उसका मतलब ये है कि हर बार एनिमल की मोटिवेशन डिफरेंट है. तो वो इंटरनल स्टेट बताती है. इट इज इंटरनल स्टेट दैट गवर्न्स अराउजल एंड रेडीनेस टू एक्ट. आपकी इंटरनल स्टेट कैसी है जो कि गवर्न कर रही है अराउज, आर यू अराउज, आर यू रेडी टू एक्ट और नॉट. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स आते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्नोस्टिक और सेक्सुअल बिहेवियर, और सिंपली सिनर्जिस्टिक रिएक्शन जो और इंटरेक्शन आते हैं बिटवीन डिफरेंट हार्मोन्स, वो डिसाइड करते हैं कि एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस तरह से
बिहेव करेगा, या न्यूरो हॉर्मोन्स की वजह से भी मोटिवेशनल स्टेट जो है वो आपकी क्या हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है। जैसे एड्रिनलिन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, ऑल ऑफ दैट। सो मोटिवेशन इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग कि every time a lion passes through or beside a herd of a deer, वो हर बार उनको अटैक नहीं करता। Why not? Because at times there is a motive that is present, at times there is a motive that is not present. So जब motivation present होगी, then the lion it is going to go after and chase the deer, and it is going to hunt it. But when motivation is not present, now the lion won't go there and it won't hunt it. So हालांकि बाहर की situation it is all same, but depending on the internal state of the organism, it changes. So these are some of the types of behavior and learning that we have covered now. So this is the mind map that I prepared, and I hope it was effective for you. This was all the basics.